In this lesson, we are going to learn about free consent. Free consent, if parties enter into contract with free will, that means no pressure, then it is known as free consent. According to Section 14 of Indian Contract Act, consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud and misrepresentation. फ्री कंसेंट जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसके अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल या वॉइड हो सकता है। उसमें मेनली व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोएर्शन, उसमें कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। अब इसको वन बाय वन देखते हैं। कोएर्शन, if one party is committing a crime or threatening to commit a crime in order to force other party to enter into the contract, then it is known as coercion and contract is voidable. Voidable means अगर अदर पार्टी चाहती है, अगर क्लेम नहीं करती है तो वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो वॉइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन रहता है पार्टी के पास। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, इफ वन पार्टी इज कमिटिंग अ क्राइम और थ्रेटनिंग टू कमिट क्राइम इन ऑर्डर टू फोर्स अदर पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें थ्रेट, अगर किसी क्राइम को करके या क्राइम को थ्रेट दे करके जो है करने का थ्रेट दे करके अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो वॉइडेबल हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। A person cannot do anything which is prohibited by the Indian Penal Code for making contract. For example, A threatens to shoot B if B does not agree to sell his property at the stated price. Here, B's consent is obtained by coercion. A ने B को शूट करने के लिए की धमकी दी और बोला कि वो प्रॉपर्टी उसको एक गिवन प्राइस, जो वो जिस प्राइस पे चाहता था उस प्राइस पे बेच दे। तो ये भी एक तरह का कोएर्शन है। यहाँ पर बी का कंसेंट जो है कोएर्शन से मिला है। इन चिक्कम आमिराजू वर्सेस चिक्कम शिशमा, एच अ हिंदू by threat to commit suicide induced his wife and son to write a deed in favor of H's brother regarding certain property. In this case, court has held that threat to commit suicide is offense under Indian Penal Code and amount to coercion. Therefore, the deed is voidable. Unlawful detention and of property. Unlawful detention or threatening to detain property is also coercion. ये भी coercion होगा। इन कृष्णलाल कालरा वर्सेस NDMC, इस केस में क्या होता है, द प्लेंटिफ वॉज गिवन लाइसेंस बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू रन ओपन एयर रेस्टोरेंट एट कनॉट सर्कस, न्यू दिल्ली, बट बिफोर the expiry of license his restaurant was thrown out and he was threatened that if he will not give possession of property he will be detained under MISA, Maintenance of India Internal Security Act. In this case, threat of detention under MISA is coercion, hence plaintiff is entitled for compensation. इसमें प्लेंटिफ को कंपनसेशन मिला चूंकि उसका ओपन एयर रेस्टोरेंट जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया था NDMC द्वारा। सुसाइड or threat to suicide is coercion. The money or any property received in contract which is influenced by coercion is bound to be returned to actual owner. अगर coercion से कोई मनी या प्रॉपर्टी पाई गई है किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको एक्चुअल ओनर को वापस करना जरूरी है। थ्रेटनिंग टू sue, if genuine or justifiable reason, then no coercion. But if threatening to sue on false ground, then it is coercion. किसी के ऊपर केस करना, केस करने का धमकी देना अगर जस्टिफाइबल रीज़न है तब तो वो कोएर्शन नहीं है, अगर जेन्युइन रीज़न है तो। अदरवाइज वो ये भी कोएर्शन में ही आएगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कोएर्शन के, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ इंजर्ड पार्टी। जैसा पहले ही बताया है कि अगर इंजर्ड पार्टी चाहे तो उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकती है।
द इंजर्ड पार्टी हैज टू प्रूव कोहर्शन, इंजर्ड पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कोहर्शन. इंजर्ड पार्टी हैज ऑल्सो प्रूव, the injured party has also prove coercion. Injured party has to also prove that it has entered into contract just because of coercion. ये सब चीजें प्रूव करनी पड़ेगी coercion के केस में. अब देखते हैं undue influence. When one party is in position to dominate the will of other person and actually misuses the position, then it is in a case of undue influence and contract becomes voidable. undue influence क्या होता है? जैसे कि एक डॉक्टर है, पेशेंट, क्योंकि पेशेंट के ऊपर उसका पूरा पूरा डोमिनेशन होता है, यानी कि पेशेंट जो डॉक्टर कहेगा वही पेशेंट करता है. तो पेशेंट जो है डॉक्टर के ही भरोसे रहता है, पूरी तरह से उस पर ट्रस्ट करता है. लेकिन अगर डॉक्टर उसके ट्रस्ट का मिसयूज कर ले तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाएगा. If all the three following conditions are satisfied, then we treat the situation as undue influence. 1. Person is in position to dominate the will of another. He misuses his position. He obtains an unfair advantage. अगर ये तीनों चीज है तो undue influence में आएगा. जैसे for example, doctor and his patient, advocate and his client, spiritual guru and his disciple, master. ये तीनों चीज जो है, ये तीनों चीज है फिड्यूशियरी रिलेशन कहलाता है. रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट. यहाँ पर क्योंकि एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट होता है पेशेंट का डॉक्टर के प्रति, क्लाइंट का एडवोकेट के प्रति और डिसाइपल का अपने स्पिरिचुअल गुरु के प्रति, तो ये फिड्यूशियरी रिलेशन कहलाता है. और दूसरे तरह का रियल अथॉरिटी जैसा रिलेशन है मास्टर एंड हिज सर्वेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर एंड टैक्स पेयर, पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज. तो इन सब के केसेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस की संभावना ज़्यादा रहती है. फ्रॉड. फ्रॉड क्या है? व्हाट इज फ्रॉड? इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट नोइंग देम टू बी फॉल्स, not disclosing the latent defects. It refers to those defects which cannot be discovered by reasonable examination. Promise being done without any intention of performing it or any other deceiving activity. तो फ्रॉड में क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो फॉल्स स्टेटमेंट, जानते हुए भी जानबूझ करके फॉल्स स्टेटमेंट दे देना, या किसी छुपे हुए डिफेक्ट को न बताना, या जो है प्रॉमिस किया है और उसको परफॉर्म करने का उसका इंटेंशन नहीं है ऐसा प्रॉमिस कर देना, या कोई अदर जो है धोखा देने वाली एक्टिविटी. तो इन एडिंगटन वर्सेस फिट्जमॉरिस, अ कंपनी was in great financial difficulties and needed fund to pay some liabilities. The company raised amount by issue of debenture. While raising amount, company director stated that they need fund for development of company to purchase assets. In this case, court has held that director has committed fraud. यहाँ पर कंपनी ने जो है फंड गलत तरीके से रेज किया, तो यहाँ पर कोर्ट ने उसको फ्रॉड कहा. एक्सेप्शंस क्या है? ड्यूटी टू स्पीक, जहाँ पर बताने की ड्यूटी है, बोलने की ड्यूटी है और वहाँ पर कोई चीज़ नहीं बोलता है, तो वो जो है जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम एटसेट्रा. यहाँ पर इंश्योरेंस या मेडिक्लेम में ये माना जाता है कि क्लाइंट को पूरी पूरी जानकारी इंश्योरेंस के केस में दी जाएगी या मेडिक्लेम के केस में दी जाएगी. तो यहाँ पर जो है ये एक्सेप्शन है. मिस रिप्रेजेंटेशन. इट इज अ मिस स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय अ पर्सन हु थिंक्स दैट इट इज ट्रू. मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये एक मिस स्टेटमेंट है जो कि एक पर्सन द्वारा दिया जाता है जिसको वो जो कि ये सोचता है कि ये सच में सही है. लीगल रूल्स रिलेटिंग टू मिसरिप्रेजेंटेशन. इट रिलेट्स टू मटेरियल फैक्ट ऑफ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट. इट इंड्यूस्ड और इंस्पायर्ड द अदर पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. देयर शुड बी नो इंटेंशन टू डिसीव. यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में,
यहाँ पर डिसीव करने का यानी धोखा देने का इंटेंशन नहीं है। चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस शुड बी ऑल्सो कम्युनिकेटेड इफ दे अकर बिफोर द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के पहले ही कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, सर्कमस्टेंसेस कुछ चेंज हो गए हैं, तो उसको क्लियरली बताने की जिम्मेदारी होती है। अगर नहीं बताया तो दैट इज ऑल्सो मिसरिप्रेजेंटेशन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल। द इंजर्ड पार्टी may insist for performance, may have to refund the money. In Derry versus Peak, director of company is stated in prospectus that they are authorized to run tramway with steam power. For this final permission will be obtained very soon. But after some time, Board of Trade refused to give permission. Shareholders argued that company has committed fraud. In this case, court has held that there was no intention to deceive. यहाँ पर कंपनी का इंटेंशन डिसीव करने का नहीं था, क्योंकि लाइसेंस उसको मिलने ही वाला था, फाइनल परमिशन जल्दी ही मिलने वाला था, बट उसको किसी कारणवश नहीं मिल पाया। तो ये कंपनी की गलती नहीं थी यहाँ पर। इन दिस केस कोर्ट हैज हेल्ड दैट देयर वाज नो इंटेंशन टू डिसीव, सो इट इज़ नॉट फ्रॉड बट इट इज़ मियर मिसरिप्रेजेंटेशन। ये जस्ट मिसरिप्रेजेंटेशन है। अब कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कोएर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में। कोएर्शन में इट इन्वॉल्व्स फिजिकल फोर्स और थ्रेट, अनड्यू इन्फ्लुएंस इट इन्वॉल्व्स मॉरल फोर्स और मेंटल प्रेशर। कोएर्शन है इंटेंशन इज टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ पार्टी, अनड्यू इन्फ्लुएंस में इंटेंशन इज टू ऑब्टेन unfair advantage. Relationship between parties is not necessary. Some relationship between parties is necessary. ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट अंडर इंडियन पेनल कोड और अनड्यू इन्फ्लुएंस में नॉट क्रिमिनली लायबल। कोएर्शन में वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, अनड्यू इन्फ्लुएंस में वॉइडेबल और कोर्ट सेट असाइड टू एनफोर्स इट इन मॉडिफाइड फॉर्म। या कोर्ट इसको कह सकती है, कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकती है, या ये इसको जो भी इसमें कोई त्रुटि है उसको सही करके मॉडिफाइड फॉर्म में उसको लिया जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में क्या है? इंटेंशन इज टू डिसीव अदर पार्टी। यहाँ पे अदर पार्टी को धोखा देने का ही इंटेंशन ही है, बट मिसरिप्रेजेंटेशन में नो इंटेंशन टू डिसीव अदर पार्टी। मिसरिप्रेजेंटेशन में धोखा देने का कोई भी इरादा नहीं था, इंटेंशन नहीं था। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। फ्रॉड में नॉलेज ऑफ स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स। मिसरिप्रेजेंटेशन में ही बिलीव्स दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड है राइट टू क्लेम डैमेजेस। मिसरिप्रेजेंटेशन में कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। विश यू हैप्पी लर्निंग। Please like this video and don't forget to subscribe this channel. It is totally free. Thank you.